जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 6। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। साधारण व्यक्ति मुझे अपने जैसा ही समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। Though the Lord is unborn, changeless in his nature and a lord of matter, yet keeping perfectly his maya under his own control, he comes into the world through his own free will. All the time he is fully conscious of his own divine status and unchallenged prerogative. He does not come into being as others do, compelled by their past karma. The Lord uses the matter envelopments and their limitations as a convenience and as a set of necessary tools in his game of protecting the creation. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 4 श्लोक 6। मी अजन्मा आणि अविनाशी असूनही, सर्व प्राण्यांचा स्वामी असूनही, मी माझ्या योगमायेद्वारे माझ्या स्वभावाला वश करून प्रकट होतो। ज्याप्रमाणे प्राणी निसर्गाच्या नियंत्रणाखाली त्यांच्या कर्मानुसार चांगल्या किंवा वाईट प्रजातीमध्ये जन्म घेतात आणि सुखदुःख अनुभवतात, त्याचप्रमाणे मी जन्म घेत नाही। माझ्या स्वभावाचा स्वामी असल्याने मी स्वतः माझ्या योगमायेद्वारे वेळोवेळी दैवी खेळ करण्यासाठी आवश्यक स्वरूप धारण करतो। माझा जन्म स्वतंत्र आणि दिव्य आहे, सजीवांच्या कर्मावर अवलंबून नाही। सामान्य लोक मला स्वतःसारखेच मानतात आणि माझा तिरस्कार करतात। त्या गरीब लोकांना हे समजत नाही की हे सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर सनातन शुद्ध ज्ञानी मुक्त स्वभावाचे पूर्ण ब्रह्मदेव परमात्मा या स्वरूपात प्रकट होत आहेत आणि जगाच्या कल्याणासाठी दिव्य खेळ करत आहेत, कारण त्यावेळी मी माझ्या योगमायेच्या पडद्याआड लपलेला असतो। जय गुरुदेव। నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకము 6। అజోపి సన్ వియాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సమవామ్యాత్మమాయయా। నేను పుట్టుకలేని వాడను, నాశరహితుడను మరియు సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువును అయినప్పటికీ కూడా నా ప్రకృతిని
స్వాధీనమును ఉంచుకుని నా యోగమాయ ద్వారా ఆవిర్భవించుతున్నాను. జీవులు ప్రకృతి వశలై తమ తమ కర్మానుసారము మంచి చెడు యోనుల యందు జన్మలను ఎత్తుచూ సుఖదుఖములను అనుభవించున్నారు. అటువంటిది కాదు నా జన్మము. నేను ప్రకృతికి అధినాయకుడినై నా యోగమాయ ద్వారా సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు దివ్యలీలను ప్రకటించుట కొరకు ఆవశ్యకతానుసారము ఆయా రూపధారణ చేయుదును. జీవుల జన్మములే కాక నా జన్మము స్వతంత్రము, దివ్యము అయి ఉన్నది. సాధారణ వ్యక్తులు నన్ను తమ వంటివానిగా భావించి నన్ను తిరస్కరించున్నారు. కానీ ఆ సర్వశక్తివంతుడైన సర్వేశ్వరుడు నిత్యశుద్ధ బుద్ధముక్త స్వరూపుడు. సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ అయిన పరమాత్మే లోక కళ్యాణార్థము గావించుటకై ఈ రూపములో ఆవిర్భవించబడి దివ్యలీలను చేయుచున్నాడని అమాయకులైన ఆ జనులు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నేను నా యోగమాయ యొక్క పరదా వెనుక దాగి ఉంటాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ പരശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 4, ശ്ലോകം 6. അജന്മനും നശിപ്പിക്കാനാവാത്തവനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനുമായിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കി എൻ്റെ യോഗമായയിലൂടെ ഞാൻ പ്രകടമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജീവികൾ അവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ യോനികളിൽ ജനിക്കുകയും സന്തോഷവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല എൻ്റെ ജനനം. പ്രകൃതിയുടെ യജമാനൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ യോഗമായയിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദിവ്യമായ ലീലകളിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജനനം സ്വതന്ത്രവും ദിവ്യവുമാണ്. ജീവജാലങ്ങളെപ്പോലെ കർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ആളുകൾ എന്നെ അവരെപ്പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുകയും തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദരിദ്രർക്ക് ഈ സർവശക്തനും പരമപുരുഷനും നിത്യശുദ്ധനും പ്രബുദ്ധനും മുക്തസ്വഭാവിയും പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ഈ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ലോകക്ഷേമത്തിനായി ദിവ്യലീലകൾ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ യോഗമായയുടെ മറവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अजो अपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. श्री कृष्ण कहलखिन, हम अजन्मल अविनाशी छी, समस्त प्राणिक ईश्वर छी, तैयो अपन प्रकृति के अपना अधीन क अपन योग माया स स्वयं प्रकट होइत छी. जेना जीव सब प्रकृति के वशीभूत भ अपन अपन कर्म अनुसार नीक बेजाय योनि ग्रहण करैत अछि आ सुख दुख भोगैत अछि, तेहन रूप हमर नहीं अछि. हम तऽ अपन प्रकृतिक स्वामी छी. ताहि कारणे अपन योग माया सँ समय समय पर दिव्य लीला करबा लेल यथोचित रूप धारण करैत छी. हमर ई जन्म स्वतंत्र अछि, दिव्य अछि. ओ जीव सब जकाँ कर्मवश नहीं होइत अछि. साधारण मनुख हमरा अपने एहन बुझि हमर तिरस्कार करैत अछि. ओ बेचारा ई बात नहीं बूझ पाबैत अछि जे हम सर्वशक्तिमान छी, सर्वेश्वर छी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छी, जे संसारक कल्याण लेल मानव रूप धारण क दिव्य लीला करैत छी. मुदा ताहि काल में हम अपन योग माया में नुकायल रहैत छी. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.